دامن کی ٹھنڈی ہوا چاہیے، ان کے دامن کی ٹھنڈی ہوا چاہیے، ان کے دامن کی ٹھنڈی۔ بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ، آ دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوے جانا۔ سبحان اللہ۔ کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، خود رخ کو چھپا بیٹھے کر کے ہمیں دیوانہ۔ بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ۔ دنیا میں مجھے تو نے گر اپنا بنایا ہے، دنیا میں مجھے تو نے گر اپنا بنایا ہے، تو محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ، محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ۔ بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ۔ درود پاک پڑھنا، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرات، ابھی مجھ سے پہلے استاذ گرامی حضرت علامہ مولانا مفتی بدر عالم صاحب قبلہ تقریر فرما رہے تھے۔ حضرت نے آخر میں تقریر کے آخری حصے میں فرمایا تھا کہ حضرت تیغ علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ یہاں آرام فرمائے ہوئے ہیں، اور حضرت کا فیضان پورے ہندوستان میں جہاں جاتے ہیں وہاں ملا کرتا ہے، وہاں ملتا ہے۔ تو یہ معاملہ کیا ہے؟ معاملہ صرف اتنا ہے کہ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اور پروردگار جس کا ہو جاتا ہے اس کے فیضان کو عام کر دیتا ہے، بانٹ دیتا ہے، جگہ جگہ پہنچا دیتا ہے۔ اسے پہنچانے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے تو اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کر دیا۔ جب اس نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کر دیا تو پروردگار عالم کا یہ کرم ہوتا ہے، اس کا یہ فضل ہوتا ہے کہ اس بندے کی محبت مخلوق کے دلوں میں ڈال دیتا ہے اور اس کے فیضان کو عام کر دیتا ہے۔ اس لیے پورے ہندوستان میں جیسا کہ حضرت نے فرمایا، اور سچائی یہ ہے کہ حضرت کی ذات بابرکت ایسی ذات ہے کہ حضرت کی ذات، حضرت کی زندگی کا مطالعہ کرنے سے پتہ یہ چلتا ہے کہ حضرت کی زندگی، حضرت جو ہیں شہنشاہ تصوف بھی ہیں، شہنشاہ برکات بھی ہیں، حضرت شہنشاہ تصوف بھی ہیں۔ اس بارگاہ میں 2-3 مہینے پہلے حاضر ہوا تھا، لیکن آنے کے بعد جو تصوف کا پیغام یہاں سے ملا، جو تصوف کا راز یہاں سے مجھے ملا ہے، میں اسی کی روشنی میں تھوڑی دیر کے لیے 15 منٹ کے اندر اپنی گفتگو ختم کر دوں۔ دعا فرمائیں، درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ جس کی بارگاہ میں ہم اور آپ حاضر ہیں وہ شہنشاہ تصوف ہے، اپنے وقت کا عظیم صوفی ہے، اپنے وقت کا عظیم مدبر ہے، اپنے وقت کا عظیم ولی ہے۔ اس کی بارگاہ میں جو آیا ہے اسے نوازا ہے، چھوٹا آیا تو اسے بھی نوازا، بڑا آیا تو اسے بھی نوازا، غریب آیا ہے تو اسے بھی نوازتا ہے، امیر آتا ہے تو اسے بھی نوازتا ہے، کیونکہ وہ ایسی بارگاہ ہے، وہ اس کی بارگاہ جو ہے وہ ایسی بارگاہ ہے جس بارگاہ کو نسبت کسی اور دنیاوی بارگاہ سے نہیں، آقا کریم کی بارگاہ سے نسبت ہے، آقا کریم کی بارگاہ سے نسبت ہے۔ اس نے اپنی زندگی کو آقا کریم کی زندگی کو سامنے رکھ کے گزارا ہے۔ وہ اٹھا ہے تو رسول اللہ کی سنت کو لے کے چلا ہے، وہ بیٹھا ہے تو رسول اللہ کی سنت کو لے کے بیٹھا ہے، اس نے کھانا کھایا ہے تو رسول اللہ کی سنت کو لے کر کھایا ہے، وہ جاگا ہے تو اب رسول اللہ کی سنت کو لے کر جاگا ہے، راتوں کو عبادتیں کی ہیں تو رسول اللہ کی سنت کو لے کے کیا ہے، اپنی پوری زندگی کو رسول اللہ کی زندگی کے سائے میں اپنی زندگی کو اس نے گزار دیا ہے۔ تو پروردگار عالم نے یہ فیضان عطا فرمایا ہے کہ یہ بزرگ یہاں پر یہ مظفر پور کی دھرتی پہ آرام کر رہا ہے، لیکن اس کا فیضان پورے ہندوستان میں نظر آ رہا ہے، اور لوگ فیضان پا رہے ہیں، اور کیوں نہ پائیں۔ وہ عظیم صوفی ہے، اور صوفی کہتے کس کو ہیں؟ جو دلوں کو جوڑا کرتا ہے،
टूटे हुए दिलों को जोड़ दिया करता है, जिसके वहाँ नफरत नहीं सिर्फ मोहब्बत मिला करती है, जिसके वहाँ सिर्फ अखलाक मिला करता है, किरदार मिला करता है, टूटे हुए दिलों को जोड़ दिया करता है, आवारा पेशानियों को बारगाहे खुदाबंदी में लाके झुका दिया करता है। ये पैगाम मिलेगा आपको, यहीं से मिलेगा जिसकी बारगाह में हम और आप हाजिर हैं। तवक्कुल यहाँ मिलता है, अखलाक यहाँ मिलता है, एतमाद यहाँ मिलता है, यकीन यहाँ मिलता है। रब ताला की जात पर पक्का यकीन इसी बारगाह से, इन्हीं बारगाहों से मिलता है, इन्हीं बुजुर्गों की बारगाह से मिलता है। मैंने हजरत की ज़िंदगी का जब मुताला किया तो असलाफ की ज़िंदगी की मेरे निगाहों के सामने आ गई कि हजरत ने अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल असलाफ की ज़िंदगी बल्कि असलाफ की अमानतों का अमीन बनाकर दुनिया के सामने अपने आप को पेश किया है। हजरत की सिर्फ एक झलक में आपको दिखाते हुए रुखसत हो रहा हूँ कि हजरत के अंदर परवरदिगार की ज़ात मुक़द्दस पर जो एतमाद और यकीन था वो असलाफ की ज़िंदगी से कितना मिलता जुलता है। लगता यह है कि हजरत ने अपने आप को असलाफ के ज़िंदगी के साए में अपने आप को ख़त्म कर दिया है, वक्फ कर दिया है। हजरत की ज़िंदगी में एक सबसे अजीम मामला रब ताला की ज़ात पर एतमाद और एतकाद जो है, ये हजरत की ज़िंदगी का एक अजीम पहलू है। ज़रा आप गौर करें, हजरत कहाँ आके लेटे हैं, मुजफ्फरपुर शहर कहाँ है, इस जंगल में आके लेटे हैं, लेकिन परवरदिगार की ज़ात पे भरोसा और यकीन इतना अजीम था, इतना अजीम था कि परवरदिगार आलम ने वो मर्तबा अता फरमाया कि आज इसी जगह से बैठकर पूरे हिंदुस्तान को फयूज़ व बरक़ात से नवाज रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हजरत की ज़िंदगी का मुताला करने से मुझे एक वाक़या याद आ रहा है, वह हजरत राबिया बसरी की ज़िंदगी याद आ रही है। हजरत राबिया बसरी की ज़िंदगी याद आ रही है। हजरत राबिया बसरी का अपने रब की ज़ात पर कितना पुख्ता यकीन था। वो यकीन अगर कहीं देखने को मिलता है तो वह हजरत तेग अली शाह की ज़िंदगी में मिलता है। हजरत राबिया बसरी का अपने रब की ज़ात पर भरोसा और एतमाद और यकीन ज़रा मुलाहिज़ा फरमाए। हजरत राबिया बसरी के घर 4 मेहमान आते हैं। जब 4 मेहमान आए हैं और आने के बाद खादिमा ने हजरत राबिया बसरी को इत्तला दी कि मखदूमा हमारे घर 4 मेहमान आ गए हैं, दोपहर का वक्त है, दोपहर ढलने को है, खाने का वक्त है। खादिमा कहती है कि मखदूमा हमारे घर में खाने के लिए कुछ नहीं है और ऐसे वक्त पर मेहमान आ गए हैं, क्या किया जाए, कैसे इंतज़ाम हो, ऐसा ना हो कि मेहमान भूखे चले जाए। मखदूमा हजरत राबिया बसरी पूछती हैं कि खादिमा बता, किचन में कुछ है कि नहीं है, मतबख में कुछ है कि नहीं है। खादिमा कहती है कि कुछ भी नहीं है। फिर राबिया बसरी पूछती हैं, अच्छा ज़रा देखो तो सही, कुछ तो होगा। तब वो नौकरानी, वो खादिमा कहती है कि मखदूमा किचन में जो है सिर्फ एक रोटी है, रात की एक रोटी है। मखदूमा कहती हैं कि उसको लेके चली आओ। हजरत वो खादिमा लेकर आती है। हजरत राबिया बसरी कहती हैं कि जाओ इसे अल्लाह की राह में खर्च कर दो, जाओ इसे अल्लाह की राह में दे दो, इसे सदका कर दो, किसी फकीर को दे दो। खादिमा कहती है कि एक तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है, ऊपर से आप कह रही हैं कि एक रोटी है, इसको जो है मैं सदका कर दूं, मैं क्या करूं, कैसे करूं। हाँ, मेहमान बैठे हुए हैं, दोपहर का वक्त हो चुका है, खाने का वक्त हो चुका है, कहीं ऐसा ना हो कि मेहमानों को भूखा जाना पड़े। लेकिन मखदूमा का हुक्म था, वो जाती है और जाने के बाद उसने वो रोटी सदका कर दी। जब रोटी सदका कर दी है, सदका करके आके बैठती है मखदूमा की बारगाह में और सोचती है कि इन मेहमानों को खाना खिलाऊं तो कहाँ से खिलाऊं, कैसे खिलाऊं, कुछ भी घर में मौजूद नहीं है। अगर आज ये मेहमान इस दहलीज से भूखे वापस चले गए तो दुनिया यही कहेगी कि राबिया बसरी की चौखट से मेहमान जो है भूखे वापस गए थे। क्या किया जाए, ये सोच रही थी कि दरवाजे पे दस्तक होती है। जब दरवाजे पे दस्तक हुई तो खादिमा दौड़ के जाती है, दरवाजा खोलती है। जब दरवाजा खोल के देखा उसने, दरवाजा खोला तो एक जवान लड़का, नौजवान खड़ा था। वो पूछता है कि क्या राबिया का मकान यही है? वो खादिमा कहती कि हाँ, राबिया का मकान यही है। फिर वो पूछता है, वो कहता है कि मेरे मालिक ने राबिया के लिए खाना भेजा है, ये खाना राबिया को दे दीजिए, हजरत राबिया को दे दो। वो खादिमा राबिया के
खिदमत में लाती है, और लाने के बाद जब खादिमा की खिदमत में लाई है, हजरत राबिया बसरी खाना खोलती हैं। खाना खोलने के बाद राबिया बसरी रोटियां गिनना शुरू करती है। 5 रोटी थी। जैसे ही 5 रोटी गिनी है, राबिया बसरी ने खाना बंद किया और बंद करके खादिमा से कहती है कि जल्दी से इसको लेके जाओ और उस लड़के से कहना कि अपने मालिक से सही पता पूछे और वहां तक खाना पहुंचा दे, ये राबिया का खाना नहीं है। खादिमा सोच रही थी कि ये खाना आ गया है, चलो हम मेहमानों की मेहमान नवाजी कर देंगे, लेकिन मखदूमा हजरत राबिया बसरी है कि वो खाना वापस करा रही है। खादिमा बहुत परेशान है कि आया हुआ आई हुई नेमत को मखदूमा वापस करा रही है, आया वो खाने को वापस करा रही है। मेहमान को हम खाना खिलाएंगे तो कहाँ से खिलाएंगे, लेकिन मखदूमा का हुक्म था, खाना वापस कर दिया जाता है। अभी ये खादिमा आके राबिया बसरी की खिदमत में बैठती है कि दरवाजे पे दोबारा फिर दस्तक होती है। जब दरवाजे पे दोबारा दस्तक हुई है, दरवाजा खोलती है वो खादिमा, देखती है कि दूसरा लड़का खड़ा है। वो पूछता है कि क्या राबिया का मकान यही है? वो कहती है हाँ राबिया का मकान यही है। बोले ये मेरे मालिक ने खाना भेजा है, ये ले जाके राबिया को दे दो। वो खादिमा लाती है खुशी खुशी कि चलो मेहमानों के खाने का इंतजाम हो गया है। मखदूमा की बारगाह में लाके पेश करती है, और जैसे ही पेश किया है उन्होंने खाना खोला, रोटियां गिनना शुरू की तो उसमें 7 रोटियां थी। खादिम मखदूमा ने फौरन खाना बंद किया और खादिमा से कहा कि ये खाना ले जाकर उस लड़के के हवाले कर दो और कह देना कि लड़के से कि अपने मालिक से सही पता पूछकर जिसका खाना है वहां पहुंचा दे, ये राबिया का खाना नहीं है। खादिमा परेशान हो गई, नौकरानी की खाना आया है और वापस की जा रही है और देर होती जा रही है और मेहमान बैठे हुए उन्हें खाना खिलाना है, लेकिन मखदूमा का हुक्म था वापस कर दिया, ले जाके वापस कर दिया। और टूटे हुए दिल से मखदूमा की खिदमत में बैठी भी सोच रही थी कि खाना खिलाया जाए तो कैसे खिलाया जाए, मेहमान नवाजी की जाए तो कैसे की जाए। लेकिन इतने में तीसरी मर्तबा फिर दरवाजे पे दस्तक होती है। जब दरवाजे पे दस्तक हुई है, दौड़ के जाती है, दरवाजा खोलती है और दरवाजा खोला है तो तीसरा लड़का खड़ा था। वो पूछता है कि राबिया का मकान यही है? वो कहती है कि राबिया का मकान यही है। फिर वो कहता है कि ये खाना राबिया को दे दो, मेरे मालिक ने भेजा है। खाना ले जाकर राबिया को दे देती है। वो हजरत राबिया ने खाना खोला, जैसे खाना खोला है राबिया रोटी गिनती हैं। अब रोटी गिनी है तो 10 रोटियां थी। फिर राबिया बसरी खातिमा से कहती है ये खाना ले जाओ और वो उसे उन मेहमानों को खाना खिला दो। राबिया बसरी की वो नौकरानी खातिमा हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती है, कहती है मखदूमा ये राज मेरे समझ में नहीं आ रहा है, पहला खाना लाया था तो आपने वापस कर दिया, उसने भी तो यही कहा था कि राबिया का घर है, मेरे मालिक ने भेजा है आपने वापस किया, दूसरे ने भेजा तो उसका भी खाना आपने वापस कर दिया और तीसरे ने भेजा है यही जुमला कहा है और आपने खाना ले लिया है, मामला और वजह क्या है? हज़रत राबिया बसरी कहती हैं ए नादान तू नादान है, तू अभी इस राज को नहीं समझेगी। राबिया बसरी की खातिमा हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती है, कहती मेरी मखदूमा इस मसले को इस राज को मुझे समझा दीजिए वरना मैं पागल हो जाऊंगी या मर जाऊंगी। तब राबिया बसरी कहती हैं अरे नादान तू नहीं जानती है, तुझे ये मालूम नहीं है कि मेरे रब ने मुझसे वादा किया है कि तू मेरी राह में एक खर्च कर, मैं एक के बदले में तुझे 10 दूंगा। जब 10 रोटियां आ गई हैं तो राबिया को यकीन हो गया कि मेरे रब ने मेरी रोटी का बदला अदा कर दिया है, इसलिए राबिया ने ये खाना ले लिया है और तुमसे कह दिया है कि मेहमान नवाजी करो। ये यकीन और ये एतमाद कहाँ मिलेगा? यही मिलेगा, इन्हीं बुजुर्गों की बारगाह में मिलेगा जिस बुजुर्ग की बारगाह में आप खिराजे अकीदत पेश करने के लिए आए हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इन बुजुर्गों की बारगाह में आओ और इनकी सीरत को पढ़ो, इनकी जिंदगी को पढ़ो, इनकी सीरत पढ़ो, इनकी जिंदगी पढ़ो, इनकी सवालें पढ़ो और पढ़ने के बाद अपनी जिंदगी को उस साए में ढालने की कोशिश करो। उनकी जिंदगी के साए में अपनी जिंदगी गुजारोगे तो हजरत तेग अली शाह तो नहीं बनोगे लेकिन उनके गुलाम तो बन जाओगे, उनके सच्चे गुलाम तो बन जाओगे। जरूरत इस बात की है कि उनकी सीरत के साए में जिंदगी गुजारी जाए तो हम यहाँ भी कामयाब होंगे, वहाँ भी कामयाब होंगे। इन बुजुर्गों
बुजुर्गों की सोहबत और इन बुजुर्गों की सीरत जो है वो यहाँ भी कामयाबी अता फरमाएगी, कब्र में भी रहनुमाई फरमाएगी और हश्र में भी रहनुमाई फरमाएगी। अपनी जिंदगी को कामयाब बनाना है तो इन बुजुर्गों की सीरत के साए में जिंदगी गुजारने का हौसला पैदा कीजिए और आज़म पैदा कीजिए कि हम इन बुजुर्गों के नक्शे कदम पे चलेंगे तो परवरदिगार आलम की रहमतें झूम उठेंगी और हमारी तरफ मुतवज्जह होंगी और हमारा उर्स में भी आना कामयाब होगा और उर्स में बैठना भी कामयाब होगा और यहाँ से जाना भी कामयाब होगा। दुआ है परवरदिगार की बारगाह में कि परवरदिगार आलम मुझे और आप तमामी हजरात को हजरत के फयूज़ व बरकत से मालामाल फरमाए और हजरत के नक्शे कदम पर हमें जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्ला अल बलाग।